इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले वेव्स इन स्ट्रिंग में क्या होती है, कोई भी स्ट्रिंग में वेव की इक्वेशन क्या होती है, del टू एफ बाई del टी स्क्वायर 1/v² del टू बाई del टी स्क्वायर। और यहाँ से पता चलता है कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अपनी वेव प्रोपेगेट कर रही है। सो वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू टी बाई नहीं होता है, टी क्या होता है, टेंशन, एंड म्यू क्या है, लीनियर मास विच इज m/l। So generally we can rewrite equation in this form: f z t equal to function of z minus v t in g, which is in plus z direction. Relative sign of these two will decide the direction of this wave propagation. So first derivative will be gz z plus vt. It will be in minus z direction. Again differentiation. So minus z minus vt. It will be in minus z direction, and again it will be in plus z direction. Now we'll compare it with sinusoidal solutions. So solution of this equation will be function of zt equal to a cos kz minus vt plus delta, where a is amplitude and kz minus vt plus delta is argument of phase, or we say it's phase. What is its phase? Delta is phase constant, k is wave number which is 2 pi by lambda, t is 2 pi by omega. Since v equal to omega by k, so omega equal to v into k, and f equal to v by lambda, v equal to n lambda, or v equal to f lambda. Now we discuss about complex notation of the wave equation. So f of zt will be real part of this whole equation because it will be in cos plus iota sine. It will be 0. It will not be considered in wave equation solution. Only real part will be there. So it also can be written as in this form. Now boundary condition. Suppose we have two waves, two strings, string 1 string 2. A wave is incident. एक इधर से वेव आ रही है, उसकी वेलोसिटी v1 है, सो n इक्वल टू एफ लेंडा. मीडियम है ऑल्सो सेम μ1, so here also v1 equal to f lambda, and wave is going like this. And in v2 medium is change because permeability is μ2, string 2, so wave will go like this. So there are two possibilities of transmission and reflection. या तो वेव ट्रांसमिटेड हो सकती है या रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है. तो से टेक एंड वेलोसिटी स्टैंडर्ड टी वन म्यू से इस कॉम्बिनेशन में वेव जा रही है, इधर से रिफ्लेक्ट होगी, इधर से ट्रांसमिटेड होगी, एंड इट्स जॉइनिंग एट जेड इक्वल टू 0. सो इंसिडेंट वेव विल बी ए ई की पावर आइटा के जेड k1 z माइनस ओमेगा टी फॉर जेड लेस देन 0 which is incident. Reflected also for z less than 0. But what will happen reflected in reflection? This z will be minus z. Okay, then we will get in direction, because from this it is going to plus z direction, from this it will go to minus z direction, so it will be minus k1 z. And transmitted wave is k2z, it will go in plus z direction. Here frequency and time period, their tension is same for both strings, both, but μ1 and μ2 are different क्योंकि मीडियम डिफरेंट इसलिए, एंड v1 v2 आर आल्सो भी डिफरेंट. सो v इक्वल टू f1 lambda 1. So it can be written in the combination of these two, incident and reflected, and so it is greater than 0, it is transmitted. So at the boundary, what will happen? Z equal to 0 minus and z equal to 0 plus. What will happen? Both will have same value. And if the node itself is of a negligible mass, then first derivative of the function will be continuous on the 0. This is telling to you. So solving both these two equations, we will get amplitude of reflected will be v2 minus v1. जो परावर्तित तरंग है उसका आयाम v2 minus v1 बटे v1 plus v2 ai, एंड जो ट्रांसमिटेड है पारगमित तरंग है उसका आयाम 2v2 बटे v1 plus v2 इंसिडेंट. देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, कुछ मीडियाज पढ़ने हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. और फ्री स्पेस क्या होता है? फ्री स्पेस में क्या होता है? कंडक्टिविटी 0 होती है. सिग्मा इक्वल सिग्मा नॉट इक्वल टू सिग्मा क्या कंडक्टिविटी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक. अब लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है
कि कंडक्टर के अंदर एमडब्ल्यू आसानी से प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। देखो होता क्या इसमें, इसको बोलते हैं परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और गुड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये आसानी से प्रोपोगेट करने नहीं देगी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, सिग्मा 0 होगा। और ये एप्सिलॉन मीडियम की निकालेंगे ऐसे, यहाँ भी मीडियम की आ जाएगी। और सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा होगा ओमेगा एप्सिलॉन से कम होगा, बस याद रखना। परमिटिविटी है, परमिबिलिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये तो लॉसलेस था, लॉसी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इज ए मीडियम इन विच एन ईएम वेव एज इट प्रोपोगेट्स loses its पावर ड्यू टू दिस इम्परफेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, ये तो परफेक्ट वाला, अब क्या है इम्परफेक्ट वाला। सो लॉसी डाइलेक्ट्रिक और पार्शियल कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक, इम्परफेक्ट डायरेक्टिव और इम्परफेक्ट कंडक्टर है ना, इसमें सिग्मा 0 नहीं होता, लॉसी वाले में सिग्मा 0 नहीं होता। ठीक है, बस याद रखना। लॉसलेस में सिग्मा वेव तो वैल्यू कम है, और यहाँ पे सिग्मा लगभग बराबर है ओमेगा एप्सिलॉन के, इसमें लॉसी में। नो गुड कंडक्टर्स में क्या होता है, सिग्मा इन्फिनिट होता है। ठीक है, और सिग्मा देखो 3 टाइप अपने पास आए हैं, एक तो सिग्मा लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन, सिग्मा लगभग बराबर ओमेगा एप्सिलॉन, और सिग्मा ग्रेटर ओमेगा एप्सिलॉन। तो क्या है, ये है गुड कंडक्टर, ये क्या है लॉसी डाइलेक्ट्रिक, और क्या है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। तो ये तीनों चीज़ अपने को याद रखनी है, कब क्या होगा। लॉसलेस में सिग्मा लेस देन होगा, लॉसी में सिग्मा बराबर होगा, गुड कंडक्टर में सिग्मा ग्रेटर होगा ओमेगा एप्सिलॉन से। अब देखो लॉसी डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो मैं एक्चुअली इक्वेशन सोल्व करने में पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, डेल टू इज माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 और डेल टू एच माइनस गामा स्क्वायर एच इक्वल टू 0। ये डीकपल्ड इक्वेशन है ना, ये कौन सी डीकपल्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से गामा स्क्वायर क्या आएगा, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई, एंड गामा इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सो गामा विल बी अल्फा प्लस जे बीटा, सो गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर विच विल बी ओमेगा म्यू अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। सो एल्फा विल बी ओमेगा, अपने पढ़ लिया अल्फा है ना, प्रीवियस लेक्चर में अल्फा पूरा पढ़ा है, क्या होगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2 वन अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर -1, और इस पूरे का अंडर रूट चल रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला बीटा के लिए। और देखो फ्री स्पेस में क्या होगा, ओमेगा बाई के होता है, के क्या होता है ओमेगा बाई वी होता है, कि रख दो ओमेगा बाई वी इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 अपन म्यू एप्सिलॉन, तो यहाँ से वी के बच जाएगा 1 अपन म्यू एप्सिलॉन। एंड फ्री स्पेस में क्या होता है, वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। लॉसी डाइलेक्ट्रिक, अब लॉसी डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ई नोट ई रेस टू कॉमर्स अल्फा जेड कोस ओमेगा टी माइनस के जेड आई कैप, एंड ई नोट प्राइम विल बी ई नोट ई रेस टू कॉमर्स अल्फा जेड, है ना, ये ऐसे कैसे आ जाएगा पूरा। ऐसे ही एच क्या होगा अपने पास ये पूरा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है बात है कि ई बी और के सब क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ई कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में, वेव प्रोपेगेटिंग जेड डायरेक्शन में है, तो बी कौन से में होगा, जे कैप में होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये क्या अपना पॉइंटिंग वेक्टर है। एंड एच नोट क्या होता है, ए नोट बाई नीटा होता है,
वो क्या है, इंटरेस्टिंग इम्पिडेंस है किसकी, मीडियम की। सो फ्री स्पेस की इम्पिडेंस क्या होती है, 100 म्यू अपॉन एप्सिलॉन होती है। यहाँ से निकालेंगे तो जेड नोट क्या निकलेगी, 120 पाई अंडर म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट विच इज 377 ओम। सो जेड बेसिकली इंट्रिंसिक इम्पिडेंस के इक्वल है यहाँ पे नीटा के अंडर म्यू अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ से नीटा का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। which also can be written as complex form neta theta n neta e raised to power theta n। थीटा और थीटा एन क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज है ना। इसी को सोल्व करें तो क्या निकला अपने पास, एन इक्वल टू 100 म्यू अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/4 एंड टेन थीटा टू थीटा एन इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ऊपर जे ओमेगा म्यू है, नीचे जे ओमेगा सिग्मा एप्सिलॉन है और यहाँ सिग्मा है। अल्फा क्या है अपना, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट फॉर मीडियम है। और ये क्या मेजर करेगा, स्पेशल रेट ऑफ डीके। मस्त जब वेव AMW मेटल के अंदर जाएगी तो डीके होगी। सो स्पेशल रेट ऑफ डीके ऑफ द वेव इन द मीडियम मेजर करता है क्या, अल्फा। और इसका यूनिट क्या होता है, नेपर पर मीटर। क्या होता है, नेपर पर मीटर। जो अपनी टावर की रेडिएशन होती है ना, वो ऐसे मेजर होती है नेपर पर मीटर में, और डेसिबल्स पर मीटर। 1 नेपर पर मीटर क्या होता है, 20 log 10 बेस ई 8.686 डेसिबल। देखो गुड कंडक्टर्स में क्या था, सिग्मा 0 था। गुड कंडक्टर्स में क्या था, सिग्मा 0 एंड सिग्मा 0 फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक ऑल्सो। और फिर स्पेस में इन सब के लिए अल्फा क्या होता है, 0 होता है। कहाँ से निकालेंगे ये फॉर्मूला, अपना डेरिव करिए, यहाँ से निकालेंगे। सो क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला, नो डोनेशन ऑफ वेव इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक नो रोटेशन विल बी पॉसिबल। नो बीटा क्या बताता है, पैरामीटर है जो फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ को बताता है। क्या बताता है, फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ विल बी रेडियन पर मीटर एंड इट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट ऑफ वेव नंबर के। सो बीटा किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है बेसिकली। सो इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई बीटा यहाँ से, और 2 पाई के की जगह बीटा रख सकते हैं। म्यू इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा के होता है। ई एंड एच आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल थीटा एन एट एन स्टेट ऑफ टाइम। वो जो अपना डेराइव किया था वो वहाँ से। अब देखो थोड़ा सा अपने को समझना है कि अगर 2 वेव अपने को दे रखी है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने निकाल लिया, तो फ्री स्पेस होगा ना, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। यहाँ दिख रहा है आई कैप, यहाँ दिख रहा है जे कैप, लेकिन फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। क्यों है 0 फेज डिफरेंस, क्यों है 0 फेज डिफरेंस, क्योंकि ये भी जेड में, ये भी जेड में, और इनके बीच में जो फाई है ना, फाई का रेशो क्या है, 0 है। इसलिए आई और जी के अपने जाना है, गलत आंसर नहीं देना है। फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 इस कंडीशन में जब फ्री स्पेस हो। कौन सा स्पेस हो, ये फ्री स्पेस हो तब। अदर कंडीशन में 5/2 होगा। तो देखो JC बाई जेड निकालना है अपने को। ऊपर कंडक्टिविटी है और नीचे डिस्प्लेसमेंट करंट वाला करंट डेंसिटी है। तो क्या निकलेगा, सिग्मा ई अपॉन आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन टेन थीटा। ये भी आता है, टेन थीटा क्या होता है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा क्या बोलते हैं अपन, लॉस टेंजेंट वोल्टेज। JC बाई जेड इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। क्या ये लॉस टेंजेंट है, थीटा क्या है, लॉस एंगल है, और थीटा क्या होता है, 2 थीटा इनके इक्वल होता है। अब देखो जब लॉस टेंजेंट कम होगी मीन्स टेन थीटा की वैल्यू कम होगी, मीन्स सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन कम होगा, सिग्मा की वैल्यू ओमेगा एप्सिलॉन से कम होगी। और ये कब होता है, ये होता है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक में। और गुड कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, टेन थीटा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेन थीटा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ये कम होगा तो लॉसलेस, और ये ज़्यादा होगा तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। सो बिहेवियर ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन म्यू, विच इज बिहेवियर ऑफ जो मीडियम है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे भी। ए लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक लोसी डाइलेक्ट्रिक कौन सा कर रहे हैं अपन, लोसी डाइलेक्ट्रिक, सिग्मा लगभग बराबर ओमेगा एप्सिलॉन होगा। तो एक्सलेक्शन क्या हो जाएगी भाई, फ्री स्पेस में उसे जे ओमेगा म्यू एच
और यहाँ डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, विच इज कपल्ड इक्वेशन इन ई एंड एच। और डेल क्रॉस एच क्या होगा, सिग्मा जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। ठीक है, डेल क्रॉस ई क्या होगा, माइनस जे ओमेगा म्यू एच, एंड डेल क्रॉस एच सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। सो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ये कॉमन ले लो बाहर, तो 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू ई, और ये कपल्ड इक्वेशन ही बन जाएगी यहाँ से। सो डेल क्रॉस एच विल बी 1 माइनस जे टेन थीटा, क्योंकि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन क्या था, टेन थीटा था। सो डेल क्रॉस एच विल बी जे ओमेगा एप्सिलॉन एम ई, यहाँ से एप्सिलॉन एम क्या निकल रहा है, 1 एप्सिलॉन 1 माइनस जे टेन थीटा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन जे टेन थीटा, which is complex permittivity of the medium epsilon minus j omega double epsilon, where this is real part, this is imaginary part. So tan theta in a form can be written as permittivity in imaginary by permittivity in real. So Ez equal to inverse e raised to minus alpha z cos omega t minus beta z I cap, and Hz equal to e naught by neta e raised to the minus alpha z cos omega t minus beta z minus theta and j. Since neta can be written as in this form, 100 mu by epsilon 1 plus sigma upon omega epsilon square raised to the power 1 by 4. Put it here and you will get the answer. Okay. Now lossless dielectric. lossless में क्या था, सिग्मा जीरो था, पहले लॉसी था फिर लॉसलेस था, है ना। सिग्मा लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन, इसलिए लॉसलेस है ना। अल्फा वेव इटरेशन जीरो होता है, बी इक्वल टू ओमेगा वे ऑफ प्रोपगेशन ओमेगा अंडर म्यू एप्सिलॉन, एंड नेटा इक्वल टू अंडर म्यू अपॉन एप्सिलॉन लेस देन जीरो, एंड वेलोसिटी इज 1 अपॉन अंडर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ये के इक्वल है, बीटा के इक्वल है। So neta equal to motion less than 0. So no phase shift between E and H. For free space alpha 0, beta equal to omega mu naught under mu naught epsilon, beta equal to omega by c, beta equal to beta equal to k. Now प्लेन वेव्स में क्या होगा, गुड कंडक्टर्स जा रही है तो गुड कंडक्टर्स में क्या होता है, सिग्मा ग्रेटर होता है, मीन सिग्मा इन्फिनिट होएगा और ये सारे सेम होंगे। सो नेटा क्या निकलेगा, सी अपॉन वी, सी होता है म्यू होता है, सोलो कर लो तो म्यू आर एप्सिलॉन आर, और म्यू आर क्या है, परमिटिविटी 1, तो नेटा इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपने को पता ही है। अल्फा की वैल्यू अभी अपनों ने डेराइव करी है, तो सिग्मा इन्फिनिट होगा तो अल्फा क्या होगा, अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2, सेम बीटा भी अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। सो फॉर गुड कंडक्टर्स अटेंशन कोफिशिएंट एंड प्रोपगेशन कोफिशिएंट कांस्टेंट विल बी सेम वैल्यू, what will same value, under root omega mu sigma by 2, under root omega mu sigma by 2. Now velocity is omega by beta, that is under root 2 omega by mu sigma, which is velocity for good conductor, lambda equal to 2 pi by beta. And eta is surface impedance for good conductor, which is under root j omega mu by sigma, which is omega mu by sigma, and 45 degree will be value of neta. And s naught is not by n रख दो, ये सब वैल्यू थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी ना। नेटा क्या होता है, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा, ओमेगा म्यू बाई सिग्मा हट जाएगा तो इट इज 45 डिग्री। So E can be written as in this form, H can be this form, H naught E naught by n, so H naught will be E naught by n, and n will be omega mu by sigma. तो यहाँ पे अपन नेटा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ओमेगा म्यू अपन सिग्मा रख दो और ये वैल्यू अपनी आ जाएगी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन डेप्थ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्किन डेप्थ।
नाउ स्क्रीन डेप्थ क्या होती है? द डिस्टेंस लेमडा डेल्टा थ्रू विच द वेव एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू ए ई इनवर्स फैक्टर ऑफ ई इनवर्स विच 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड स्क्रीन डेप्थ। मीन्स कोई ई एम डब्ल्यू कंडक्टर के अंदर जा रही है तो वो डिस्टेंस जहाँ पे जाके जो ई एम डब्ल्यू है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू की 37% डिक्रीज हो जाए। मीन्स कितनी बच जाए? ई बाई 1/e ऑफ 30, मतलब 37% बच जाए बेसिकली। कितनी बन जाए? E0/e हो जाए, 37% हो जाए, उसको बोलेंगे अपन स्क्रीन डेप्थ। इसको Z = 1/अल्फा से डिफाइन करते हैं, अल्फा के अटेंशन कोएफिशिएंट, और इसका फुल फॉर्मूला आता है √2/ω सिग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, √2/ω सिग्मा, √2/ω सिग्मा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो दो कंडक्टर अपने पास C1 और C2, स्क्रीन डेप्थ है डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब देखो अपन ये सब बोलेंगे जो पहला कंडक्टर ज़्यादा अच्छा है दूसरे से, तो क्या होगा? सिग्मा 1 ग्रेटर सिग्मा 2। अब ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है ना, तो उसके अंदर ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगी ये, तो डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2, so EMW will decay and move in 1 more than 2, so it will be hard for the EMW to penetrate for the more good conductor. So स्क्रीन डेप्थ can be written as delta = 1/alpha attenuation coefficient अंडर 2/ω सिग्मा। ओमेगा खोल दो तो एफ पे डिपेंड करती है, म्यू पे और सिग्मा पे डिपेंड करती है। और नीटा आल्सो कैन बी रिटन एज 1 + j/σ म्यू। जैसे को ऊपर कोई कंडक्टर है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ करना है अपने को। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा। सॉरी लैम्डा क्या? डेल्टा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। So neta can be written as omega 1 + j/σ delta. So neta can be written as one real part plus imaginary part. So real part of neta क्या है? रेजिस्टेंस है, R = ρl लिखते हैं, तो सिग्मा और डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा है ना। इसको ऊपर मीटर कर दो तो यूनिट विड्थ और यूनिट लेंथ वाले कंडक्टिंग वायर के लिए क्या है? रेजिस्टेंस है ये 1/σ डेल्टा। देखो क्वेश्चन है अच्छा सा, लॉसलेस डायरेक्ट्रिक है जिसके लिए नीटा की वैल्यू दी अपने को, म्यू आर की दे दी, एच की दे दी, तो अपने को एप्सिलॉन आर ओमेगा और ई कैलकुलेट करना है। अब लॉसलेस डायरेक्ट्रिक के लिए क्या होता है? सिग्मा 0 होता है, सिग्मा लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन अल्फा = 0। याद रखने पड़ेंगे सारे ना, कि लॉसलेस में क्या होगा, लॉसी में क्या होगा, और गुड कंडक्टर में क्या होगा। गुड कंडक्टर में ग्रेटर रहता, यहाँ पे लेस आएगा, इसलिए सिग्मा 0, अल्फा भी 0। अब देखो ये वाला अपने को दिया है, इसको कंपेरिजन करो तो क्या आएगा? ये क्या है? बीटा है, प्रोपोगेशन वाला। बीटा क्या दिया है? 1 दिया है, दोनों में फेज शिफ्ट है ही नहीं। बीटा क्या है? 1 है। नीटा 60 पाई है। नीटा क्या होता है? 100μ/σ होता है। क्या होता है? नीटा 100μ/σ रख दो। म्यू आर की वैल्यू 1 दी है, तो आएगा 120 पाई 100μ/ε कितना हो जाएगा? 120 पाई अपॉन 100ε कितना हो जाएगा? 120 पाई बाई 100ε। इसको 16 का = 4। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला याद रखना था। और बीटा क्या होता है? ओमेगा √μ/ε। बीटा क्या होता है? ओमेगा √μ/ε। रख दो, ओमेगा = β/√μ/ε। यहाँ से वही म्यू आर की वैल्यू 1 की 4, तो 2/√σ/c/2 आ जाएगा। सी क्या होता है अपने पास? 3 × 10⁸ सही हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ये अपने को दिया, तो H1 और H2 अपने को दे रखा, ठीक है। अब H पूरा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। E कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। बट डायरेक्शन याद रखनी है अपनी, ये I और J में जा रहा है तो ये -J में जाएगा और ये I में जाएगा। सो H क्रॉस के = E, H1 = E1/n। सो E1 = n × नीटा × H1। सो नीटा वैल्यू रख दो, H1 की रख दो, यहाँ पे सेम टू सेम नीटा × H2। सो दोनों वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखो अपना पढ़ना है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स। कोई रीजन है अपने पास जहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, कि इसमें करंट में फ्री स्पेस है, तो ये सारी मैक्सवेल इक्वेशन ये इस टर्म में लिखा जाएगी। अब ये सब क्या है? कपल्ड इक्वेशन, डीकपल्ड इक्वेशन ये होती है, अपने को पता है। माना अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, सो बी को अपन इस टर्म में लिख सकते हैं क्या? K/ω/Z होता है ना, परपेंडिकुलर होती है। B = K/ω/Z/E0। सो V0 = E0/c। ये भी याद रखना है, B0 = E0/c। वही E = BV नंबर 1। So in a monochromatic plane where wave is traveling in arbitrary direction, so electric field can be written in this form and magnetic field written as in this form.
which is k cross n k perpendicular direction. So this will be unit vector in which its wave is propagating. Now energy and momentum in plane electromagnetic waves. Now energy density in field क्या होती है, म्यू em हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 नॉट. अब EMW की क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रख दो. सो म्यू एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होगी, टोटल ये हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. इसका एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, हाफ. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी ए पॉइंटिंग वेक्टर एस which is energy carried out point time point area is equal to E cross B upon mu naught, which is E cross H. Our direction is always in the direction of wave vector. So S will be under root epsilon naught upon mu naught E square cos square. So S jet equal to epsilon naught upon under mu naught epsilon naught E square cos square. It is C epsilon naught E square cos. So S jet can be defined as C mu em kk. इसका एवरेज लेंगे तो अपने पास आएगा हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज सी म्यू ई एम, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी डेंसिटी. ना मोमेंटम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वही मोमेंटम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू एस एस अपॉन सी स्क्वायर. ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, मैं एग्जाम में पूछ सकता है, वो याद रखने. सो म्यू ई बाई एम सी आ जाएगा, एवरेज निकालोगे तो वही एस अपॉन सी स्क्वायर विच इज इंटेंसिटी. सो मोमेंटम इज रिलेटेड विद पॉइंटिंग वेक्टर एस एंड पॉइंटिंग वेक्टर एस रिलेटेड विद एनर्जी डेंसिटी. नाउ रेडिएशन प्रेशर और टोटल रिफ्लेक्शन प्रेशर. रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, डेल यू बाई सी, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये माइनस पी, सॉरी P माइनस P है ना, डिफ्लेक्ट करेगा इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन. सो P प्लस P 2P हो जाता है. सो 2 डेल्टा यू बाई सी. डेल्टा का चेंज एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट सरफेस. फोर्स निकालेंगे यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, पावर ये डेल्टा P बाई डेल्टा टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. सो फोर्स विल बी IA बाई सी एंड हियर 2IA बाई सी. सो फोर्स विल बी IA बाई सी टू 2IA बाई सी विच इज पार्शियल रिफ्लेक्शन. सो प्रेशर टर्म विल बी I बाई सी and pressure term for reflection 2I by C.